क्वेश्चन होंगे तो यू कैन आस्क मी. अभी मेरे ख्याल में इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कोविड पे आऊंगा. तो 10-15 मिनट 20 मिनट इसको राजेंद्र जी दे दो. If anybody had any question. Yeah, I have a. अभी एक just turn by turn ले लेते हैं हम सबको. Yeah, I have a question. I have a Yes. question. Yes, yes. I am here since September 2020. Yes. Under the medical emergency of my daughter, they permitted me here. Yes. And now the waiver is applied. Parent carer visa, can I get under the medical? Because my daughter is not, she is actually the chronic, what I can say, the ovarian cancer, third stage. She was operated here and we have to look after her. There is a provision of parent carer visa for your sponsor. Yeah. There is a provision. Yeah, So under which, under which you can apply. Yeah. But they are very limited. They have some hardly 200 visas. Yeah. But this So one, I don't know how much my- they have given and how much had been left. in my case, But you can apply. No, in my case, the Yes. rare, say ovarian cancer, rare. Yeah. And she That was. medical problem, I don't know. Yeah. That is their problem to look into. Okay. Whether it They will- suits to, whether this is admissible or not admissible, that their immigration will tell you all these things. So But parent, you are eligible to apply. so how soon we can get that? Because we That have got is it. no date, no processing date for that. So now see, we got it waiver visa. and Yeah, wherever applied you got it. No, Yeah. we are going to apply for that 3 years visa. So you are saying that 3 years visa is cancelled? No, We can't you can apply it, not cancel. 3 years visa, this 870 3-year visa, you can apply anytime. You ask your son to apply. No, my And he will- already online we have applied, and that PCC clearance they asked us to submit the particulars forms. Yeah, and you other have to things. complete the Yeah, yeah. formalities, as I Formality have and- told you. Yeah. But So- you are you will get it. Yeah, You will get this visa 870. 870 is carer visa, huh? Patient. No, it's not carer visa. This is a temporary sponsored visa. Okay. Temporary is for they have applied for this. Yes, And 3 only years. Yeah, Yeah. he can apply for 3 years and 5 years. Yeah. For 3 years, he has to pay 5,000 for each, Yeah. and for 5 years, it is 10,000. Yeah. So Yeah. meantime, see the application after applying this from onshore itself, we will apply for the patient carer visa or whatever, whichever the feasible. Once you get this visa, then you can't apply for that visa. Which one? That carer visa. We can't Yeah, apply. yes. Then you can't apply. No, bridge visa, they are saying that you can go for that. Bridging visa will finish when you will get this 870 visa. Exactly, I have to. Then there will be no bridging visa. And carer visa, we have to apply separately. You can't apply when you have 870 visa. I have to find out that way in which Yeah, category I'm they have telling applied. you. Yeah. And Can if I- you want, you can get some specialist advice in this regard. He will tell you better than me. I'm not a migration agent. I have learned all these things by experiences. Yeah. Yeah. Okay. So take some migration agent advice also. Maybe Yeah. he'll tell you better something which I may not be knowing. राजेंद्र जी एक छोटा सा नेक्स्ट सवाल है. क्वेश्चन सतिंदर जी, एक मिनट. Okay, सतिंदर thank you, चावला जी thank ने you भी very हैंड रेज किया हुआ है. Thank you. टर्न बाय टर्न एक को ले लेते हैं प्लीज. राजेंद्र एक म्यूट छोटा सा रखो. सवाल है. हाँ जी. A small question from Mr. Jagdish. Yes. जगदीश जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो probably everyone is facing here. Yes. And that is, assuming somebody got the parent visa in 2016. Yes.
now they give you some time that, before you wind up your operations in your country and come here, Yeah. first 5 years may you have to spend 2 years here. Yes. Now, जब वो एज पेंशन की जब क्वेश्चन आता है, Yes. so that time, which date will they consider? The day you are granted visa in 2016, or when you finally come here in 2018? When you finally come here in 2018, that date will be considered. Not from the grant of Not visa. not from the grant of visa. That When you means- will arrive here, it will be stamped by immigration. From that date, it will be considered. That means from 2018, 10 Yes. years more. 10 years Yes, yes. From there, 10 years more. And 10 years is a residency period. If you, between 10 years, if you go to India, stay 2 years or 3 years, many people did these mistakes. They were not knowing that 10 years is a residency period. You have to Residency be period, here in Australia. Many people, even my very close friends, they said we went to America and we stayed there 6 months, and again we went, and in between we went to India. One of my colleagues, his wife was working in Kuwait, so he visited almost 3 years. He was in Kuwait during 10 years. So he did not get it because his residency was not complete here. So he has to wait for another 3 years to complete that residency period here. Yeah, that's right. Yes, Yeah. that's right. Yeah. Thank you, Chuk Saab. Okay, sir. ओके you very पहले No अभी mention. सतिंदर जी का और बाद में उषा जी का ले लेते। सतिंदर जी। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैं क्लब का और जगदीश जी का, जो कि बहुत सीनियर हमारे में है और हमेशा हर पल एक सिंगल कॉल पे ही ये हमेशा अटेंड करके जवाब देते। मैं भी थोड़ा बहुत जो कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, तो उसमें मेरे को कई सवाल आते हैं। एक दो छोटे से सवाल है जगदीश जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा उसका जवाब। द कॉमनवेल्थ कार्ड और हेल्थ कार्ड, कॉमनवेल्थ कार्ड जो है वो मिलता है एट द एज ऑफ, मैं पूछो, हाँ जी, पहले बता दो तो- विच इज योर क्वेश्चन। हाँ जी। सो कॉमनवेल्थ कार्ड एंड हेल्थ कार्ड में डिफरेंस क्या है बेनिफिट्स में? वन, सेकेंडली, क्या हेल्थ कार्ड जो कॉमनवेल्थ कार्ड का तो मतलब इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट दे रही है, क्या हेल्थ कार्ड के ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट दे रही है? थैंक यू। कॉमनवेल्थ कार्ड और हेल्थ केयर कार्ड में ये डिफरेंस एक ये है कि कॉमनवेल्थ कार्ड उनको मिलता है जिनकी एज पेंशन एज होनी चाहिए 66.5 years आज की डेट में उनको मिलेगा। वेयर एज हेल्थ कार्ड के लिए सभी एलिजिबल हैं फॉर एनी एज। हेल्थ कार्ड में जो फैसिलिटीज हैं वही कॉमनवेल्थ कार्ड में भी सेम फैसिलिटीज हैं। आपको मेडिसिन चीप मिलेंगी, उसमें भी मेडिसिन आपको चीप मिलेंगी। और उसमें ये है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको कुछ काउंसिल से, आपका कोई मकान है और आप काउंसिल से जो काउंसिल के रेट्स वगैरह आते हैं तो उनमें आपको कम चार्जेस देने पड़ते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। या आप किसी भी जगह मतलब है जाते हैं, जू में गए या पिक्चर हॉल में गए या कहीं भी गए तो उसमें भी आपको हाफ कंसेशंस मिलती हैं। और आपका कोई एनर्जी सप्लीमेंट्स वगैरह है तो इफ यू हैव कॉमनवेल्थ कार्ड तो यू विल गेट कंसेशन इन सप्लीमेंट्स आल्सो। और सेकंड थिंग जो है, प्रीवियसली वी वर गेटिंग these Commonwealth card and healthcare card after we were eligible after 2 years of permanency. But now
from 1st January 2019 के बाद जो PR हुए हैं उनके लिए अब 4 साल के बाद उनको they are eligible for health care card, और कॉमनवेल्थ के लिए तो 4 साल के बाद भी अगर 66.5 साल की एज नहीं है तो they have to wait for that age also before getting the Commonwealth care card. But health care card will serve your purpose. आपको मेडिसिन वगैरह चीप मिलेंगी. बाकी जो जू कंसेशन ये वो है, वो आपके पास एक सीनियर कार्ड्स भी होता है विच यू गेट आफ्टर 60 years. तो अगर आपके पास वो है तो इन जगह में जो कंसेशन पीटी इसकी क्या कहते हैं मेट्रो में ट्रैवलिंग की कंसेशन है, उसमें सीनियर सिटीजन कार्ड में आप सैटरडे संडे यू कैन ट्रैवल फ्री. Every year they give you 2 passes to travel in Victoria anywhere you want. एक यहाँ seniors week होता है every year in October. So that week you can travel freely anywhere in Victoria. तो वो concession seniors card के साथ है which you get after 60 years of age. विजय, मेरा ये सवाल था कि कोविड में हेल्थ कार्ड को क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज? ओनली हेल्थ कार्ड को कोई बेनिफिट नहीं है. सीनियर जो कार्ड्स हैं उनको कभी जैसे स्टिमुलस पैकेज का मैंने बताया कि लास्ट ईयर पीपल हैव गॉट दोज हु आर सीनियर हेल्थ केयर कार्ड, कॉमनवेल्थ सीनियर कार्ड, तो उसके ऊपर बेनिफिट थे लास्ट ईयर, और फिर भी कभी मिलेगा तो ये कॉमनवेल्थ सीनियर कार्ड होना चाहिए थैंक यू फॉर बेनिफिट्स. थैंक यू Okay, सर. Usha ji. Okay. Okay. Hello, Suga uncle. It's really nice to hear you Done with by done, I will take lots of information, and hello and regards to everyone. थैंक यू मैडम. अंकल, मुझे मम्मा के लिए पूछना था. Situation is कि मम्मा मेरी यहाँ पे like 3 years का वीजा उनका पहले लगा था and it was expiring in December 2020. तो because यहाँ पर COVID था and we reapplied another new visa before Yes. just applied before पहले वाला खत्म हो रहा था, तो उनका ग्रांट आया मम्मा का जून में एंड अभी उनका दिसंबर 2 तक मम्मा का वीजा है. दैट इज अ टूरिस्ट वीजा बिकॉज शी इज नॉट eligible for PR or anything. So she is on tourist visa. Now we were thinking of applying for visa subclass 870, जिसके बारे में भी आपने बताया, जो हम 3 years या 5 years apply कर सकते हैं. I heard according to your conversation we can apply from here also. Am I right? Yes. Okay. And in that case जैसे मम्मा का दिसंबर में खत्म हो रहा है, कितना टाइम पहले हमें अप्लाई करना चाहिए? इसमें टाइम लगता है 3 महीने. 3 months before you apply that would be better. Okay. 6 months का वैसे तो उनका जनरली रहता है, but 3 months since you are here, 3 months before you apply, your visa expires, you must apply. Okay. And as per जो combined income हमारी है as a sponsor for her, हमारी combined income जैसे आपने बताया कि I think 83,000 something कुछ होनी चाहिए. 475. हाँ जी, तो वो for which period? Presently or which period? It should be when he is applying at that time he should have this income. Okay, presently होनी चाहिए. Yeah. Okay, ठीक है. और is there any COVID benefits for mama being here as a चाहे tourist है वो, लेकिन being citizen, senior citizen, कोई COVID benefits mama को मिल सकते हैं? For the time being there is no such benefit. As I told you, Red Cross is giving some benefit. आप Red Cross को apply कर दीजिए, she will get $800. One time. One time, and then again after 2 months she will apply. Again she will get 800. लेकिन वो किस basis पे apply करें? कोई basis नहीं, बस they are you are living here temporarily. You have temporary visa. That's all. That's good. Okay. No basis needed. Many people have got it. They are giving to everybody, those who are financial problem. Yes. बट उसमें चुक साहब, उसमें
जो बच्चे हैं उनकी भी तो इनकम का देखना पड़ेगा ना। हाँ, उनकी अगर अगर उनकी इनकम लो है दे तो आर वेल सेटल्ड तो वो रिफ्यूज कर देते हैं। यस यस Yes. थैंक यू। हमारे केस में जैसे माय हस्बैंड इज वर्किंग और मैं कैजुअल काम कर रही थी, तो मुझे इतने बेनिफिट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। वो आपका मांगेंगे डिटेल, वो देन दे विल सी इट वेदर इट सूट्स और नॉट, ओके, दैट्स ऑल। ठीक है। बट Thank आप you. अप्लाई जरूर कर दीजिए, यू मस्ट अप्लाई एंड होपफुली यू विल गेट इट। ओके। मतलब मेरा जो बच्चे वहाँ पे मेरे को मिल ही नहीं और सका। देयर इज नो सिचुएशन, नो कोई कहते हैं ना लूप होल भी नहीं है टू अप्लाई फॉर हर पीआर हियर, बिकॉज 2 kids of her are in India and 1 is here. तो So she does not meet balance of family test. So any other no, loopholes और कुछ भी ऐसा किसी तरह से कुछ ऐसा बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट में कोई लूप होल्स नहीं है, nothing. It's very clear. You have already declared we are 3 children, this that. हाँ So जी, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि जो भी आप डिक्लेयर करते हो ना, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, यस, वो कंप्यूटर पे उनके आ जाती है। हाँ जी, तो जब यहाँ एज ए टूरिस्ट आई होंगी तो उन्होंने जरूर मेंशन किया होगा हाँ मेरे जी, हाँ 3 जी, बच्चे हैं और ये, हाँ तो जी, वो सब रिकॉर्ड उनके पास परमानेंट रहता है। ओके। तो और ऐसा भी, ऐसे कभी सोचो भी नहीं इस कंट्री में ना, प्लीज डोंट थिंक फॉर ऐसा हो सकता है, आपको ये लगता सब है कि इंडिया कोई में है। लॉ कमिंग टाइम में आ हाँ, सकता है, बिकॉज वी रियली वांट हर टू बी हियर विद अस, तो लगता है people are आपको कुछ struggling, association are fighting with the government के ये बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट हटा दो। बिल्कुल, क्योंकि और People किसी are कंट्री में भी struggling. मेरे ख्याल से ऐसा है, वो कनाडा में भी इजीली अब है। कभी भी हो जाए तो हो भी सकता है, हाँ, गवर्नमेंटें बदलती हैं तो लोग, अब जैसे गवर्नमेंट बदलती हैं, लोगों को वोट चाहिए एक पार्टी को दूसरी को, तो वो कमिट कर देते हैं हमें आ गया तो हम हटा देंगे। ओके, तो ऐसा हो भी सकता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग नाउ, बट इट कैन बी। हाँ जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू Thank you, सो जी। मच। ओके ओके, नेक्स्ट दानिश सेठी का एक सवाल है, और इनके बाद मैं बोल दूं इंद्रजीत सिंह जी, दीवान सोमनाथ है और रमेश चंद्रजीत, 4 लोगों का है। तो पहले दानिश शेट्टी, विल यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, तो नेक्स्ट इंद्रजीत सिंह। हाँ जी सर, हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते थे? कुछ? मैं बोलूं? ठीक है। हाँ, अच्छा, आप हाँ जी, आपने पूछा था ना। हाँ सचदेवा जी, जी, आप ही हो। हाँ जी, सॉरी। थैंक यू चुग साहब, बहुत अच्छी सारी इंफॉर्मेशन दी आपने। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम पीआर होके अभी 2015 में यहाँ आए थे, तो जो 10 साल वाली आपने बताया कि यू शुड बी रेजिडेंट हियर फॉर 10 years, लाइक बीच में लोग कोई बाहर चले जाते हैं, तो वो पीरियड कितना है? जैसे हम लोग इंडिया तो जाते हैं, अभी तो 2 साल से नहीं गए, तो हम जाते हैं महीना 2 महीने में लगा के आगे, तो हाउ लॉन्ग वी कैन स्टे इन द कंट्री, दैट विल बी नॉट मैं काउंटेड इन आपको सिंपल बताता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, इवन सेंटर लिंक विल नॉट टेल यू। आप उनके पास जाइए और आप कहिए कि हमें रेजिडेंसी में क्या है, कितना रहना है या कितनी रिक्वायरमेंट है, नोबडी विल टेल यू। ओके। कोई भी नहीं बताएगा ये क्वेश्चन का जवाब आपको। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरी जब पेंशन का केस चल रहा था तो मैं भी इधर उधर सर्च कर रहा था, हाँ सेंटर जी, लिंक से भी बात कर रहा था कि कोई थोड़ी तो क्लू मिल जाए बिफोर आई अप्लाई। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको सिंपल, आप 10 ईयर हैं, हाँ जी, आप ये लेके चलो कि 5 weeks अगर आप बाहर रहे हैं 10 साल में, एवरी ईयर हाँ जी, योर रेजिडेंसी इज कंप्लीट। ओके, 5 weeks। 50 हफ्ते अगर आप बाहर रहे, आप आउट ऑफ द कंट्री रहे हैं 10 साल में, 50 या 55 weeks, ओके, then your residency is complete. ओके, Yes. ओके, थैंक यू, बस वो यही हम इतना ही। कहीं से पता लगा था मुझे, ठीक है, तो ये कोई बताएगा भी नहीं। so और that period now will be extended like for to 10 years to 11 years। 465 weeks
आप चेक कर लो कि हम 10 साल में यहाँ रहे हैं या नहीं रहे, बस। ठीक है 465. ओके वीक्स, यस। ठीक है. If you are lived here for 465 years in 10 years, it means your residency is complete in all respect. Otherwise No it will be question. extended to 465 The- until or unless it doesn't come to 465. Yes, yes. I interrupt. ओके तो ओके अभी नेक्स्ट आपके पास टाइम है, ज्यादा मत जाओ, बस 55 वीक मैक्सिमम देख I लो। got it sir. ये Thank you 10 very much. years में हमें इतना बाहर रहना। हाँ, definitely got it. Yeah. Thank you. Oh, Thank you very much sir. मैं डॉक्टर सोलंकी बोल रहा हूँ, इंटरप्ट कर हाँ रहा जी हूँ सर, डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? गुड गुड। सर जी वीडियो ऑन कर दीजिए याद अपना। कर रहे हैं बहुत। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो बताया 5 ये मैं सुबह में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहा था, वो इसकी वेबसाइट पे गवर्नमेंट में। हमें भी बताया Okay. करो ना पढ़ के, आप हाँ। हमें तो बताते नहीं, अपने मैं आप ही बताऊं? पढ़ते रहते हो। सोलंकी साहब वीडियो तो ऑन कर दीजिए, हाँ, दर्शन ओके, कराइए आपके। हाँ ओके। जी। और तो ये बात है कि जो इसमें लिखा है कि यू हैव टू स्टे 5 ईयर कंसेक्यूटिवली, आपको 5 साल। मैंने आपको बताया है ना, वो फार्मूला अभी सुना है ना आपने? वो तो मेरे ख्याल में है ही। बस उसमें 5 इयर्स सब बिल्कुल कंटिन्यू हो गया आपके। अच्छा, वो हाँ 400 हाँ, बस उतना टाइम अगर आपने कर लिया कंप्लीट, तो वो 5 इयर्स कंटिन्यूअस स्टे भी आपका बीच में हो गया। ओके, सो 60 वीक इज ग्रेसेबल। Yes, graceable. You Thank can you very stay there, enjoy there, and you will get full pension. Okay, that's right. Yes. ओके नेक्स्ट देवान सोमनाथ। जी छवि साहब नमस्कार। मैं नमस्कार सर। दानिश में ले लेता हूँ बाद में। हाँ सॉरी। जी, हमारे साथ इन्होंने पहले तो एग्रीमेंट किया था कि 65 एज होनी चाहिए और 10 साल भी होने चाहिए, तो उसके बाद अब 66 प्लस हो गया है, तो ये भी अब हमारे ऊपर भी लागू होगा? आप क्या मतलब? मतलब पहले तो इन्होंने कहा था हमें 8 साल पहले के 65 एज होनी जरूरी है, और या 10 साल होने जरूरी है आपको, वहां पर फिर पेंशन लगेगी। पेंशन के लिए एज की जरूरत नहीं है। आप 10 साल जब पूरे कर, पेंशन के लिए एज है आपको भी लगेगी, जो भी उस टाइम एज होगी आपको, अगर नहीं कंप्लीट करते तो उस आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो एज जो है 66 प्लस होनी जरूरी है? 66 अभी है, 66.5, 66.5 साल है अभी। तो आगे फिर बढ़ जाएगी, और ये 23 में 67 साल 67 ईयर हो जाएगी। तो जब भी आपका 10 साल में आपका पेंशन एज पे आ जाओगे, और अगर आपकी वो 67 या 66.5 साल उम्र नहीं होगी, तो तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पहले मेरा मतलब यह है कि उन्होंने 65 बोला था कि 65। वो छोड़ो, ये रूल बदलते रहते हैं। वो 8 साल पहले क्या बोला था, आज क्या बोला है? ये पहले 65 हुआ करता था, ये जो कॉमनवेल्थ कार्ड एवरीथिंग, अब उसके लिए भी 66.5 हो गया है। एजिड पेंशन के साथ चलता है यहाँ, जितनी एजिड पेंशन होगी आपको वो करना पड़ेगा टाइम, उसके बाद ही मिलेगी। यहाँ एक लेडी थी पॉइंट कुक की, मैं पॉइंट कुक सेवा इंटरनेशनल में मीटिंग कर रहा था, तो वो कह रही है मुझे 10 साल हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, पर मेरी एज नहीं है 66 ईयर्स, तो उसको नहीं मिल रही थी उस टाइम। भाई अब उसको मिलनी शुरू हो गई है। नाउ शी इज ऑफ एज पेंशन एंड शी स्टार्टेड गेटिंग। तो ये जरूरी है, एट द टाइम जब आपके 10 साल होंगे, तो उस टाइम जो भी पेंशन एज होगी 67 होगी, तो आपको अगर 67 नहीं है तो नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल। घर वाली की भी फिर उतनी होनी चाहिए? घर वाली की नहीं, घर वाली की उतनी हो तब मिलेगी उसको, नहीं तो नहीं मिलेगी उसको। मतलब देने ही नहीं चाहते हैं, और की गल। ये तो अब उनसे पूछो सर। नमस्ते जगदीश जी। हाँ जी सर। मैं दानिश सेठी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। क्वेश्चन है, मेरे पापा की ना
अभी थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई, तो मम्मी अकेले हैं वहां पे, मुझे उनको बुलाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो कौन सा वीजा अप्लाई करें कि मैं इनको परमानेंट जल्दी जल्दी बुलवा सकूं, क्योंकि उनके पास अभी और कोई भी नहीं है वहां पर। तो क्या पेंशन एज वीजा बेटर है, या फिर मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा भी करने को तैयार हूँ? देखो आप 87 0 पे बुला सकते हो आज की डेट में, क्योंकि 3 साल या 5 साल के लिए बुला लो उनको और वो यहाँ रहें, और बाकी तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जेम्पशन आजकल वैसे भी आना मुश्किल है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आज की डेट में जब तक कि फ्लाइट्स नहीं चलती, अच्छा, क्योंकि लाखों लोगों ने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर रखा है। इवन दोज हु आर सीनियर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वो भी इंडिया से नहीं आ पा रहे। 1,10,000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए और वहाँ फंसे हुए हैं, वो भी नहीं आ पा रहे। तो मैं उनका अगर लॉन्ग टर्म जब कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा होता है जो $48,000 वाला है, उनकी उम्र क्या है? उनकी 66 एज है। अब 66.5 हो गई है इसकी, तो तो मैं 6 महीने उसको वेट करना पड़ेगा। तो वो मैं कर फिर सकता हूँ। फिर आपके लिए 2 ऑप्शन होंगी। ओके, अगर वो 66.5 साल की हो गई तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि वो यहाँ आ जाए। वन थिंग, हाँ जी ठीक है ना? जी, यहाँ आते ही उनके लिए 804 वीसा की वो एलिजिबल हो जाएंगी। वो अप्लाई कर दो, उसमें कुछ भी नहीं, आपको 6,000 प्लस देने हैं, और वो 3 हफ्ते में यहाँ आते ही उसको मिल जाएगा, और वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, क्योंकि उसका वेटिंग 30 साल बाद वो वीसा परमानेंट मिलता है, तो जब तक वो नहीं मिलता वो रह सकती है, तो वो आपका खर्चा भी बच जाएगा, और शी कैन स्टे एज लॉन्ग एज शी वांट। तो उसके लिए क्या टूरिस्ट वीजा पे आके कर सकते हैं 804? हाँ, वो यहीं से ही वीजा होगा जब यहाँ आ जाए तो, और उम्र हो 66.5 साल, तो वो यहीं से कर सकती है। ओके, और मेरे को अभी 6 महीने तो वैसे ही नहीं आ सकती, कोई मतलब चांस नहीं है। उसके बाद बाय द टाइम फ्लाइट्स खुलेंगी, होपफुली नेक्स्ट ईयर तक, तो फिर इमीडिएटली शी शुड कम हियर, और 804 अप्लाई कर दो, कोई खर्चा नहीं करना, $6,000 में, और वो रह सकती है लाइफ लॉन्ग यहाँ। तो टूरिस्ट वीजा में कोई कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए? कंडीशन का भी चक्कर होता है उसमें क्या? कंडीशन यही 8503 नहीं होनी चाहिए बस। और अगर 8503 हुई तो? फिर वही वेवर का चक्कर है, वेवर फिर कोविड के बाद तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर दे देते हैं इस केस में ओल्ड को कि मैंने ये 804 अप्लाई करना है और वेवर दे दो, तो दे देते हैं। अच्छा, अंकल 804 में भी बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट है? हाँ जी, बिल्कुल है। थैंक यू। ओके, और मेरे को कंटिन्यूअसली यहाँ पे रहते हुए 2 साल नहीं हुए हैं, मतलब 2 साल वैसे हो गया है मेरे को एज ए परमानेंट रेजिडेंट, बट 2 साल कंटिन्यूअसली नहीं हुआ है। तो उससे परमानेंट एज ए परमानेंट नहीं हुए? परमानेंट रेजिडेंट हूँ मैं, लेकिन पिछले 4 साल से मैं अंदर बाहर हो रहा था कंट्री से। नहीं, 2 साल परमानेंट है ना यहाँ। हाँ, परमानेंट तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब पूरा कंटिन्यूस की बात कोई बात नहीं। ओके, कंटिन्यूअस कोई बात नहीं है। नहीं, तो फिर आप कहते हो कि अभी इस समय ना कोई वीजा ट्राई करूं, मैं सीधा ही? हाँ, सीधा वही करो, वो बेस्ट है। मदर अपनी आराम से सिर्फ एक दफा यहाँ आ जाए, बस उसका यही से 804 डालना, पैसा कम और आराम से रहे। अच्छा, नहीं मेरे को पैसे का तो कोई, मैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी भी करने को तैयार। बस उसमें मेडिकेयर नहीं होता तो इंश्योरेंस अपना ले लेना उसके लिए। हाँ, वो तो खैर कर। बस दैट इज द बेस्ट वीजा फॉर हर। तो मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि डोंट वेस्ट सो मच मनी। जो एज पेंशन के एज है जिनकी, दे शुड गो फॉर दिस 804 वीजा। उसमें क्या इंडिया आ जा सकते हैं बीच में? हाँ, परमिशन लेके, आप परमिशन देनी पड़ती है, ब्रिजिंग वीजा बी दे देते हैं, आप चले जाओ और फिर आ जाओ। अच्छा, ठीक है। और वो लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूटरी, मेरे को वीजा नंबर याद नहीं है कॉन्ट्रीब्यूटरी वाला, जो 48 कॉन्ट्रीब्यूटरी देखो आज की डेट में करना है तो उनके लिए 143 है, क्योंकि वो 66.5 ईयर्स की नहीं है, और 66.5 ईयर्स पे करना है तो 864 है उनके लिए।
ओके ओके, वो कितने टाइम में मिल रहा है आजकल? उनके बता रहा हूँ ना, 64 महीने लगते हैं, 5.25 साल। अच्छा, इतना लग रहा है अभी। हाँ जी, लेकिन ब्रिजिंग मिल जाएगा आपको पहले अप्लाई करो। ब्रिजिंग मिल जाएगा, वो यही रहेगी जब तक वो नहीं हाँ। आता। अच्छा, ओके, ब्रिजिंग मिल जाएगा उस केस में। हाँ जी, ओके, अप्लाई करते ही उसको ब्रिजिंग मिल जाएगा, फिर जब तक आएगा, जब भी आए, पर शी कैन स्टे हियर। सर सॉरी टू नेक्स्ट इंटरप्ट। रमेश चंद्र जी है, प्लीज। रमेश चंद्र जी। सो मच। क्यों साहब नमस्कार जी, मैं रमेश नमस्कार चोपड़ा सर। हूँ। मैं रमेश चोपड़ा हूँ। हाँ सर जी मैं सर। यहाँ पे पेरेंट्स वीजा पे आए थे, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेरेंट्स वीजा पे। यहाँ पे हाँ आगे मेरी वाइफ को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, तो क्या सर हम ये कंसेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कंसेशन कार्ड जी, कंसेशन यानी जैसे हेल्थ केयर कार्ड है और कॉमनवेल्थ केयर कार्ड है, एंड शी इज नाउ 68 ईयर ओल्ड। नहीं, कितने साल हो गए आपको पीआर? पीआर 2 साल हुए हैं, अभी रेजिडेंसी 2 नहीं है, 4 साल के बाद मिलेगा उनको। हाँ थैंक जी, यू सर, थैंक यू वेरी मच। 4 years। ओके, अनिल अरोरा जी नेक्स्ट। सर हाँ जी, है आप यहाँ? नहीं, आई एम हसमुख भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। ओके, हसमुख भाई आप पूछ लीजिए तब तक। सॉरी 1 मिनट सर, स्मॉल क्वेश्चन सर, व्हाट इज रिगार्डिंग दिस पेरेंट केयर वीजा? हाँ, नमस्ते चुक साहब। हेलो हाँ, सर। एक मिनट। हाँ, मैं मैटर ले लो। चुक साहब, मैं 804 पे यहाँ पर 2 साल से हूँ ब्रिजिंग वीज़ा पे। ठीक है सर। अगर मैं इसको चेंज कराना चाहूँ कंट्रीब्यूटरी पेड वाले में, तो क्या ये जो 2 साल हैं इसको कोई काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये काउंट करते हैं वो। मैं आज अगर डाल दूं पीआर के लिए तो ये 2 साल मेरे लेस हो जाएंगे उसमें? हाँ जी, पर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी। कि जब आप अप्लाई करोगे, आपके पास ऑलरेडी ब्रिजिंग वीसा है। हाँ 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 जी। ये है ना ब्रिजिंग वीसा। हाँ जी हाँ जी। फिर जब आप अप्लाई करोगे परमानेंट वीसा, तो योर ब्रिजिंग वीसा विल बी चेंज फ्रॉम ब्रिजिंग वीसा ए टू ब्रिजिंग वीसा सी। ओके। उस सी में एक कंडीशन होती है। हाँ जी। कि यू कैन नॉट लीव द कंट्री। ओके। तो जब तक आपका वो वीसा नहीं आएगा, 3 साल या 4 साल जो भी टाइम लगेगा, हाँ हाँ, तो आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। बस यही है आपकी उसमें एक प्रॉब्लम है, विच तो यू हैव टू लुक इनटू। तो चुक साहब, जैसे वो हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कुछ अलग से कोई बेनिफिट यहाँ मिलते हैं, कोई किसी चीज़ का, मेडिकेयर का या किसी का? मेडिकेयर तो मिलेगा ना, मेडिकेयर तो वीसा आने के साथ ही मिलेगा, वैसे नहीं जब तक पीआर होने के बाद मिलेगा। हाँ, फिर मेडिकेयर आपको मिलेगा। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू चुक साहब। ओके, नेक्स्ट यश जी है और इनके बाद है अशोक मेहता जी, हसमुख जी और दिनकर ठक्कर जी। तो यश जी है अभी? हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2019 से इधर हूँ अपनी बेटी के पास। और कोविड वीजा मुझे मिल रहा है अभी, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट वीजा है, कौन सा अप्लाई करना चाहिए मुझे? पैसे हैं तो परमानेंट वीसा इज द बेस्ट वीसा। एज क्या है आपकी? एज मेरी 70 इयर्स। हाँ, 864 वीसा बेस्ट वीसा है, परमानेंट वीसा है। आप अप्लाई कर दीजिए, ब्रिजिंग वीसा मिल जाएगा, उस पे आप रहिए जब तक आपका वीसा नहीं आएगा। अंकल, बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट नहीं मीट करते हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती वो। दैट इज, मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन पहले ही बताई है ना पेरेंट्स ऑफ वीसा के लिए, कि इफ यू डू नॉट मीट द बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। हाँ जी। तो फिर कौन सा करना चाहिए? 870। अभी तो रहो, कोविड है अपना, जितना होपफुली जब तक है, उसके बाद तो फिर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए 8 रहना, वहां से अप्लाई कर सकते।
वहां से भी ये वीसा तो अप्लाई होगा नहीं 864, उसके लिए तो आपको यही आना सॉरी फॉर नेक्स्ट इंटरप्शन सर, अशोक मेहता जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, 870 कर सकते हैं अप्लाई, ये जो अभी पूछ रहे थे, जो कहते हैं जो 3 साल वाला या 5 साल वाला। 870 में एक प्रॉब्लम है कि अगर इफ यू आर ऑन 870 then you cannot apply permanent visa. पहले जिसने परमानेंट करना है पहले परमानेंट करे, उसके बाद उसको अगर ब्रिजिंग वो नहीं है तो then he should take 870 and stay here. ओके ग्रेट। अशोक जी Can I Please add next. चुप साहब, मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि हाँ जी सर। आपने बोला कि 10 साल खत्म हो जाने के बाद भी आपको पेंशन नहीं मिल सकती अगर आपकी एज 67 नहीं हुई या तो हाँ जी। 66.5 नहीं हुई, यस, तो उसके बीच में कोई मिल सकता है क्या बेनिफिट्स? नहीं उसके बीच में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 10 साल का तो हमारा खत्म हो गया पीरियड एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट का, और वो सब बस उसके तो कुछ पेंशन नहीं है। हुई है। आपके इसका स्पॉन्सर को एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट वापस मिल जाएगी जो उसने नहीं, वो आपकी तो दी ठीक है। है, लेकिन उसके हाँ, बीच में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं उसके बीच में आपको नहीं मिलेगा, he has to sponsor has to look after you. अच्छा, हेलो हेलो, नमस्कार जगदीश जी। हाँ हाँ जी एक सर। मिनट दिनकर भाई। हाँ जी ले लेता हूँ। हेलो यस सर। नमस्कार, अभी हाँ जी सर। मैं दिनकर ठक्कर बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं अभी ब्रिटिंग वीजा में 804 804 में अप्लाई किया हुआ है। आई हाँ एम जी। एजेड 77, माय सन एंड डॉटर दोनों यही है। हाँ जी तो सर। ब्रिटिंग वीजा पर है ऑलरेडी। अब इंडिया अभी तो बॉर्डर बंद है। नमस्कार जगदीश जी। हाँ जी। हाँ जी। बॉर्डर बंद है, बॉर्डर खुलने पर इंडिया जाए तो वहाँ रहने का कितना टाइम मिलता है, कितना वीजा देते हैं? वीजा लेकर जाना पड़ेगा इंडिया के लिए अब, यहाँ का ब्रीदिंग वीजा मिला तो। देखो ये आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर है, आपके वो देखेंगे कि व्हेन यू अप्लाई फॉर ब्रिजिंग वीसा बी दे विल सी कि क्या आपके सर्कमस्टांसिस है, क्यों आप जा रहे हैं, और जितने का आप मांग रहे हैं मिलने को तो 2 साल का भी वो दे देते हैं, अच्छा 1 साल का भी दे देते हैं, 6 महीने का भी दे देते हैं। तो इट maximum डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं ऑन सम कंपैशनेट ग्राउंड कि आप जा रहे हो और हाँ आपकी उतनी वहाँ रिक्वायरमेंट है तो वो दे देते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो कितने का देंगे, वो दे देते हैं, 1 साल का भी 2 साल का भी दे देते हैं। अच्छा, हाँ। और दूसरा एक पॉइंट, अगर वहाँ से आने से पहले वहाँ से बॉर्डर बंद हो या आना हो तो फिर एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ? वो ब्रिजिंग वीसा आपका चलता रहेगा, जब टाइम होगा तो आप आना। इन टाइम नहीं आ पाए तो क्या हो सकता है? 804 में है अभी ब्रीदिंग वीजा। नहीं नहीं आ गया तो you should contact the Indian High Commission there. They will let you know what is to be done. अच्छा, ओके नेक्स्ट हसमुख जी। ओके, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। स्मॉल क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर। वो आपने पेरेंट केयर वीजा के बारे में बताया, हाँ, तो उसमें क्या है सर? थोड़ा डिटेल्स में और क्रॉस वगैरह में जानना चाहता हूँ, नंबर की कैटेगरी भी जानना चाहता हूँ प्लीज सर। पेरेंट्स के लिए ये है कि कोई जैसे आपके डॉटर है या सन इन लॉ है और उनको कोई क्रॉनिक डिसीज है और जीपी ने डिक्लेयर कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि इनको केयर की जरूरत है, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर दैट वीसा। ओनली ऑन वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ओनली ऑन दैट केस दिस पेरेंट केयर वीजा। हाँ, और वो कोई जनरल केयर चीज आई हैव हर्ड सर, जनरल केयर वीजा इज आल्सो। वैसे आप डॉक्टर सोलंकी भी इस वीसा पे रहे हैं, इनको मिला था, ये अपनी वाइफ का देखते थे, ये दोनों पीआर थे, तो इनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी, इन्होंने मुझे बताया था, and he was given carer visa to look after his wife here. Correct sir. So in that case they got it and इनके पास वो वीसा रहा। Yes sir, पर thank you. with the grace of God उनकी वाइफ की फिर डेथ हो गई,
तो फिर वीसा भी बस खत्म हो जाता है फिर। तो साहब सिंपल कैरर वीजा भी सुना है होता है, सिंपल कैरर वीजा? सब होते हैं प्रोवाइडेड द केस इज जेन्युइन, वो Correct. सर्टिफिकेट हो जाए। यस है, वो भी है। Okay, then we will discuss when required. Okay, sir. Thank you very much. Veena ji, what's your question? Can you please? वीना जी अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। ये हाँ जी। हो गया। हाँ, नमस्कार चूक साहब। नमस्कार। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी जो आपने बोला, मैं यहाँ के सिटीजन हूँ और 1 साल हो गया सिटीजनशिप हुए हुए। तो जो अभी आपने बोला रेड क्रॉस में अप्लाई करो, कैन वी अप्लाई नाउ या नहीं? Not for you. You are citizen. जी। It is for temporary visa holders. So, can I get any other kind of pension? Because we came in here in 2016 और last year मेरा citizenship हुआ है। नहीं, सिटीजनशिप का इससे कोई मतलब नहीं है पेंशन अच्छा। से। वो टाइम लगेगा, 10 साल के बाद ही होगी। Whether Okay. you are citizen or permanent, it does not matter. In Okay. between आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। अच्छा, थैंक यू। आपका हस्बैंड है? नहीं, आई हैव लॉस्ट हिम। मैं बेटे और बहू के कब साथ हुआ? रहती हूँ। कब लास्ट हुआ? वो तो आज हो गए हैं 10 साल पहले। मतलब है वो एज ए परमानेंट रेजिडेंस नहीं यहाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं आई आए? केम। नहीं नहीं, ये नेवर केम, क्योंकि उनको किसी इंडिया में के उनका डेथ हुआ था। अगर कोई आपका हस्बैंड यहाँ परमानेंट रेजिडेंस होते हाँ जी। आपके साथ अच्छा। और उनकी डेथ हो जाती, हाँ हाँ। तो फिर आप एंटाइटल थी पेंशन की, चाहे 10 साल की। फिर जरूरत नहीं है, फिर 2 साल की जरूरत थी आपको। अच्छा अच्छा, बस। ठीक है। Then there is a provision for a Okay. widow pension. I see. Yes. थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। हाँ जी बेटा। हाँ जी, राजेंद्र जी पूछिए। रविंदर जी। हाँ जी, ऐसे है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं और हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा अप्लाई किया हुआ है लास्ट ईयर से हमारा है। हमारे बेटे हमें ये बुला सकते हैं 870 पे? हम आना चाहें, इंडिया में हैं हम तो अभी 3 साल के लिए। हाँ, बुला सकते हैं। अच्छा, नहीं बताइए, हमें वहाँ पर 870 वीजा अप्लाई कर दें? हाँ जी, 87 वीजा अप्लाई कर दें, 3 साल आप रह सकते हैं। ओके, मतलब बीच में हम इंडिया आ सकेंगे, वापस इंडिया आ सकेंगे? हाँ जी, वापस जब मर्जी जाओ, उस वीसा पे 2 दफा जाओ, 3 दफा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई डेज की कंडीशन तो नहीं होगी कि इतने दिन के लिए जाना है या इतना टाइम के लिए नहीं आपको नहीं, वापस कोई आना है? कंडीशन ना, उस पे कोई कंडीशन नहीं है। आप जब जाओ जब आओ। तो कॉन्ट्रीब्यूटिव वीजा जो हमारा लास्ट ईयर अप्लाई हुआ है उससे कोई तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? नहीं, आप कर लो, 5 साल का अप्लाई कर लो, 5 साल अच्छा जी। लगेंगे उसको। और वो तो हमने किया हुआ है लास्ट ईयर का। हाँ, और फिर अपना कॉन्ट्रीब्यूटिव वीजा हमने अप्लाई किया वो हुआ है तो लास्ट ईयर किया का। है ना। अब आपको यहाँ रहना है ना, उसके लिए हाँ जी हाँ जी। आपको जब तक नहीं आता 5 साल का, वो 870 अप्लाई कर दो और यहीं रहो। तो फीस कपल की लगती है कि सिंगल है उसकी? सिंगल की। सिंगल की हाँ जी। सिंगल 5000 हाँ जी। फॉर 3 इयर्स। ठीक ठीक चूक है। साहब आने तो तब देंगे ना जब ग्रांट आपने ट्रैवल एग्जम्पशन ग्रांट होगी। 18 मंथ तक वो वैलिड रहेगा, 18 महीने तक कभी हाँ भी जी। आ जाओ। तो वो जब ये आएंगे उसी डेट से काउंट होगा। 3 साल उस डेट से काउंट ठीक है, होंगे मगर जब ये जैसे यहाँ अभी लैंड तो कर नहीं ना जाए। आ सकते। अभी ले के रख ट्रैवल लें, एग्जम्पशन ले के रख लो, 18 महीने तक वैलिड रहेगा। आप तो ट्रैवल कभी एग्जम्पशन भी मिल आ जाएगी जाओ, हमें? 18 महीने में आप कभी भी आ जाओ, 18 मंथ्स। ठीक ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, शम्मी जी आपका नेक्स्ट हो गया जी। हो गया। ओके, नेक्स्ट एनीवन? किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर। शम्मी जी के लिए कोई तो प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं, वो तो इन्होंने हमारी एड्रेस रोज ही किया। बात होती रहती है। हाँ वो तो सही है, वो तो। और कोई क्वेश्चन पूछ? पूछना है। हाँ जी, सुनीता जी हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मैडम। सर मेरा बेटा न्यूजीलैंड सिटीजन है गुड। और पिछले 5 साल 6 स्टार्ट हो गया, तब से हम यहाँ पे हैं। ओके। तो अभी मेरा बेटा इंडिया गया हुआ है, वहां उसने शादी करवाई है। ओके। तो वो स्पाउस वीजा जो लगाना है, वो कौन सा वीजा लगेगा उस पे? पार्टनर वीसा। पार्टनर वीसा है उनके हाँ लिए। जी, हाँ जी। हाँ तो वो वाइफ लगेगा। की तरफ से लगेगा कि मेरा बेटा लगाए तो वो ज्यादा बेटर है? सब क्लास। आना किसने है? बहू ने आना, बहू तो ने आना। बहू के लिए लगेगा ना, बेटे का थोड़ा लगेगा। नहीं बहू नहीं, ने आना बहू। है, बहू लगा। वो हाँ बेटा जी, लगाएगा बहू के लिए। हाँ जी। हाँ। तो कौन सा वाला लगेगा? पार्टनर वीसा है, 820 है और एक 80 शायद 2 है, 1 है। इनमें कोई भी लग जाएगा। 461 नहीं लगेगा? 461 भी है। अच्छा, क्योंकि अभी ये यहाँ की उसने परमानेंट नहीं ली हुई रेजिडेंसी। हम्म। तो न्यूजीलैंड भी बुला लेगा यहाँ की, फिर दोनों को मिल जाएगी बाद में। नहीं, अभी यहाँ नहीं आ सकती वो, पहले बहू यहीं पे आई, क्योंकि हम तो पिछले 5-6 साल से यहीं पे हैं। लड़का यही है ना? हाँ जी, यहीं पे है। न्यूजीलैंड तो अब हम वापस नहीं गए। हाँ तो यहाँ का पार्टनर वीसा यहीं से अप्लाई करेगा ना वो। हाँ जी। हाँ, वहां से भी अप्लाई कर सकता है। इंडिया में है तो इंडिया से अप्लाई कर दे। ठीक है जी। हाँ, तो फोर्थ लगाए। वहाँ VFS का ऑफिस है, वहां चला जाए और वहां अप्लाई कर दे। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विद ड्यू परमिशन कक्कड़ साहब, इनसे बोलिएगा कि लड्डू सबको खिला दें तो जल्दी वीजा आ जाएगा। यस। चावला जी मुबारकबाद तो आपने दी नहीं मेरे को। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। हेलो जी। नहीं थे भाई, आओ मुबारकबाद दो सभी। कोविड हाँ। जब भी वो लॉकडाउन खुलेगा तो फिर लड्डू मिल जाएंगे आपको। यस, लड्डू तो मिलेंगे ही, लेकिन और किसी का क्वेश्चन है तो लड्डू बाद में खा लेते हैं, पहले सबको क्वेश्चन कर लेने दो। लड्डू खिलाएंगे ही वो सब, ठीक है ना? हेलो। और हाँ जी, जी मालविया जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। चुक साहब। हाँ जी सर, बोलो। मालविया जी अब क्या हाल ये चाल जी है? नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, तो अब हम तो विजिटर वीजा पे है और ये इसका 1.25 साल हो गया है। हाँ जी। अब हम चाहते हैं जैसे जब भी कभी कब तक मार्च तक वापस हो जाएंगे, दिसंबर तक। ये दिसंबर। होपफुली। अच्छा। और वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं वो, उनकी चार्टर फ्लाइट ठीक से है। जाना पड़ेगा। हाँ, हो जाएंगे होपफुली, आप चिंता मत करो। हाँ। इतना तो रहे अब हो हम 2 क्या 4 है कि एवरी ईयर आना 2-3 चाहते हैं। महीने। तो हाँ कौन से वीजा को रखा? हाँ ये हमारा सितंबर में खत्म हो गया है, सितंबर 21 में। हाँ जी। 3 साल का वीजा सितंबर 21 में खत्म हो चुका है। हाँ जी। तो अब एवरी ईयर हम आना चाहते हैं, कौन सा वीजा बनवा के रखें? वही 600 वहां से बनेगा। 600 वीजा। हाँ, टूरिस्ट वीजा 600। टूरिस्ट वीजा वो 1 साल का ही रहेगा ना सर? हाँ जी, 1 साल बस। और उसकी फीस कितनी रहेगी? वही 145 150, $5 शायद बढ़ गई है। पहले 145 थी, अब 150 कर दी है। $150? हाँ बस। ओनली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कोई और किसी का है क्वेश्चन? कोई? ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1 minute sir. I यस want यस to ask. यस UK यस Iyer myself. जी, UK Iyer बोल रहा हूँ। हाँ जी, आइए जी। ये मेरे को अभी वेवर वीजा दे दिया है और अंडर 600 अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अप्लाई किया हुआ है। गुड। 1 साल का। तो उसके बाद फिर कैरियर वीजा मिल जाएगा पेरेंट? वी कैन अप्लाई इन दैट? केयर के लिए वही है ना, मैंने कहा है कि जब तक वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड के
क्लियरर की जरूरत है. You have to make the immigration satisfied. बाकी you are eligible to apply. You are eligible to apply. है 600 अंडर 600 टूरिस्ट वीसा अप्लाई किया है साल भर का, वेवर वीजा मिल गया है. और आपकी एज क्या है? वेवर मिल गया बस. आई एम 70 years and my wife is तो चुप साहब वो 804 में करे तो अच्छा रहेगा ना. आफ्टर टूरिस्ट आफ्टर वो तो रिड्यूस कर सकते हैं. They can do now. 600 में फिर उसको आप 804 अप्लाई कर दो. That's better. कैरर पेरेंट किया, कैरर वीजा में नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कैरियर के लिए तो प्रॉब्लम है, आपको मुश्किल ही मिलेगा. आप 804 अप्लाई करके यहाँ रहो. नहीं, my problem is my daughter is facing a chronic, it's a very medical emergency and we are required here. But that is not the case. They have limited seats for that, and if they are filled, they don't give. That is the problem. All right. After getting 600, we can apply for carer visa, na? You can apply. Okay. There is no condition that we can't apply. No. Anytime you can apply. Yeah. Thanks, sir. Thanks. Thank you. Okay. Next from Hawaii, who is there? What is your name? Sir. Hi, Sataj, sir. I'm Sataj. How are you? Yes, all good. Yeah, good. Thank you, sir. Hello, sir. Hello, sir. I have a question regarding my parents' tourist visa. Yeah. I have applied my dad and mom last year. Waive removal from the immigration, just to remove the waiver request, so they can stay over their visa. So they grant my dad's visa. But they refused my mom last year. They refused waiver? Yeah, they refused the waiver because after like 2 months, like we applied a couple of months ago before, so their stay was until August last year. Yeah. And we applied it in June, 30th of June, 2 months before. Yeah. And after end of September, I got an email saying that my dad approved it, but my mom doesn't. Yeah. So they asked me to apply for another visa. So I applied my mom and dad both to tourist visa again. I paid the fees, like everything. Yeah. So my dad recently got like a couple of weeks ago tourist visa again, 600, and mom again, she got refused the tourist visa and they give bridging visa E. Yeah. I spoke to immigration, but they said like we can't do anything. It's not in our hands. It's from the back end. That's what their answer was. So I spoke to the immigration officer. He don't have any answer. I spoke to 4 or 5 different case officers. They don't have the answer. So they want my mom to go back. Then I apply MRT now. Yes. So I mean, I'm just waiting, like, because when I applied that no further stay condition, it clearly says that that visa is not gonna affect because of the pandemic, the COVID-19. And I have that in written via their email, the immigration reply, but they're saying that we're not keeping that thing because I said, well, they can't go. Last 5 years, my parents coming, and every year before their visa expires, they go a month before. Yes. They leave, so they're following the rules. And this is the first time we have seen in life the pandemic, and I want them to safely here because India's situation is like everyone's knows, and even all around the world is not good. So I thought my parents staying with me, so like at least they're safe here a little bit. Yes. So they say, look, you apply for MRT and then we'll consider the case. But I haven't heard anything from them yet, any 3 months. Any suggestion, like what do you think? Because I have paid like so much fees for them. They charge me tourists and everything, but still, and then they ask me to pay for this. So she is now in bridging visa E. Yeah, she's on bridging visa E, and I applied bridging MRT. Visa is she can stay on bridging visa till the MRT decision has come. Yes. Okay. If they say it's given, it's okay, she will get it.
But if they refuse, MRT people will refuse, Yeah. then you have no other alternative. But she has to leave the country within 28 days. Yes, I That's totally all. understand. No other. After MRT, there's no other appeal. Yeah, but I totally understand, sir. Question was Yeah, like, they don't go like our problem or something like this. Once yeah, they have not given, mean not given, nobody can do anything. You made an appeal, so you wait for the appeal. Hopefully, we will pray that they may appeal may be accepted, and she should get it. If she does not get, then she has to leave the country within 28 days. No other, no other option. Yeah. no But other option. even like they're saying on the email that it's your current visa, like tourist visa, is not gonna affect because of the pandemic. They're still Yeah. not even that's their email, but they still didn't considering that email. Yeah, no, she's on E. They have given only for the time till the decision or his MRT is come. She Yeah. can stay up to that period. Yeah. Once that decision is come, if it is rejected, they will say we leave within 28 days. Finish. Okay. Yeah. So, Nothing but can be done. But sir, before I got an email. They says they accept the Forget file. about those because now it is with MRT. Finish. They will decide now. What you Oh, say, nothing. It does not matter. it doesn't Because matter. Yeah. everything you have to say to MRT now. Whatever you Okay. want to say, you Yeah. say. Yeah. It is, suppose you are appearing you are appearing in front of a judge. Yes. So Yes. there you say, you will give everything time, what you want to say, you say there. And Okay. what you say, if they are agree, they can give. If they disagree, finish. Yeah. Yeah, totally understand. And second last thing, my dad, he got a no for the stay request removed. So now he's 66 and a half years old. So he's eligible for aged PR, isn't it? Yeah, he is eligible. Let him apply 804 aged parents visa. He is 804, yeah. eligible. Yes. Oh, okay. So I can apply right now on show for him. Yeah. Yeah, then he can stay as long as he wants on that visa. Oh, that's good. Yeah, that's good. Yeah. Thanks for the query today. No, Really it's appreciate all it. right. Thank you very very much. Nice. Okay, good. Have a good. वीडियो Hello, sir. Yes. My question is like, I have prepared file for my mother-in-law. She's back in India. Like she used to come over here because of the COVID. She has to stay back in India for a long time. Usually she comes for 1 year and she goes and get back for 6 months. But because of this pandemic, she couldn't come back. And we have I have prepared all the file, her PR file. And just wondering if someone could help in checking that file, if possible, like checking that file to lodge the file if there is some corrections needed or something that. You can't say anything to those people actually and wait for their response. Mm-hmm. Yes, you can't do anything because they take serial wise. They have a lot of cases penned with them. Okay. So they go their own way. Okay. And another question is if is there any probability like it will the traveling will open like within 6 months or something? Nobody can say today what will happen. Even we don't know when this lockdown will be finished and everything. finished and we will come normal. You can't say anything. Yeah. And Maybe, yeah. yeah. So you can't, but hopefully, as they say that when 80% people will be vaccinated, we Mhm. will open the border and everything. Okay. So pray that
and request the people to get vaccinated as quickly as possible so that these borders should be opened. Okay, sir. This is what our Prime Minister has said, that when 80% people will be given this jab, Yeah. I will open the border. Okay. Yeah. So hopefully by December, Mhm. borders will be opened by that time. Okay, sir. And my another question is like when like after lodging the PR, like we have to apply that tourist visa again for her to come over here. The same we used Which stream you applied? the contributory one. Which one? 143 or 864? Is the partial payment contributory one. Is it 884 or 173? It's 173 subclass Yes. one. Yeah. So 173. Yeah. In 173, there is no bridging visa. Okay. So she can come here, Mhm. but she can't stay here till the decision is taken on her file. So 1 year visa she will get here. She can come here, stay here. Then she has to go back. Okay. But those who are in 884, half partially aged, if they apply, they will get the bridging visa also immediately when they apply. But her case, not possible. Okay, 884 visa. No, this is for aged people, those who are 66 and a half years. And partially they pay, half payment. Yeah, I Then got they it. get a bridging here to stay here till the visa comes. Not the other. Not 173, no, 143, no. Oh. 884, 864, they are getting bridging visa. Okay. That was my question, sir. Thank you very much for your answer. So nice to come and join. Any other? Thanks. Is there any question? No questions more. Okay, तो जगदीश जी आप बता रहे थे ना कि हम नेक्स्ट वीक कभी बाकी के टॉपिक के लिए ले लेंगे. टाइम हो गया अब. 5 बज गए अभी. तो 5 बज गया ना, तो आई थिंक वी शुड फिनिश नेक्स्ट टाइम. अभी तो कोई है नहीं क्वेश्चन. थोड़ा तो नेक्स्ट टाइम ये भी थोड़े क्वेश्चन याद करके आएंगी, लेके आएंगी तो अच्छा लगेगा. तो अगले वीक हम फिर से रख देंगे चुग सर का. तो अभी मैं हमारे चांदनी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये सब ग्रुप की. हाँ जी जगदीश चक का नंबर दे दो इसमें. हाँ दे देंगे यस, बाद में आपको दे देंगे. और चांदनी जी को बोलता हूँ हम सब 8 ग्रुप की ओर से वोट ऑफ थैंक्स जगदीश चुग सर का करते हैं. हेलो बाकी लोग प्लीज म्यूट रहो. हाँ चांदनी जी. चांदनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं आप अनम्यूट ही हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है. माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं है आपने कोई. नहीं अभी नहीं आ रही है. यार क्यों तू इन्हें चुप के तुरे रख दे इतने मुड़ के ऐसे रख दे. ओके आपकी चांदनी जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही. हाँ अभी हल्की आई. हल्की सी आई लेकिन ठीक है. नहीं इतनी तो नहीं आ रही है. हाँ ठीक है चलेगा बोल दीजिए आप. और क्या सुनने लायक तो अच्छी है. थैंक यू चुग साहब. मैं हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. आपने अपना बहुत सारा कीमती समय देके हम सब लोगों को गाइड किया. बहुत से लोगों की क्वेरीज जो हैं, जो आजकल स्पेशली इस कोविड टाइम में कुछ लोग यहाँ स्टक हैं, कुछ वहाँ, पेरेंट्स कहीं डेस्परेट हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं. तो बहुत सारे लोगों का आपने आज मार्गदर्शन किया.
तो हम सब आपकी अच्छी सेहत और लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते हैं, ताकि आप हमेशा से हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच चुग साहब। अब अगले एपिसोड के लिए हम इंतजार में रहेंगे और बहुत सारे और लोगों को भी कहेंगे कि सब अपने क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर रखें, ताकि जो भी उनकी क्वेरीज होंगी चुग साहब उसको उन लोगों को गाइड कर सके। तो थैंक यू चुग साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सब लोग प्लीज चुग साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दो, अनम्यूट करके करो। लेकिन 1 मिनट राजेंद्र जी। हाँ जी चुग साहब, एक मिनट जरा 1 मिनट। मैं चुग साहब फिर से एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू राजेंद्र कक्कड़, चांदनी जी, you have taken really a great job you have done to arrange all these groups together. Points Cook Royals, Seva International, Wyndham Active, PC Indian Seniors Group, Melton Indian Service Club, Bhartiya Seniors Club. So I am thankful to all these groups, their members, that they have spared their valuable time to come and grace this session. We have 4 topics actually we were to take, but as I told you, every topic takes at least 1 hour, and then some questions are also coming. So today we have covered only 1 topic out of that 4, parent visa, and remaining 3 topics are there. Next, I requested Kakkarji to arrange 1 more meeting. I am always ready. Whenever he will say, I will be ready. Yes. No, never say no, especially Yes, when there is a session. Thank you for your So pleasure. I will Thank take you, sir. the Thank you very remaining much. 3 Thank you very much. and Thank you. take all the question, whatever you have. And thank you very much once again all to spare your very valuable time and come here and I grace would the like to thank. occasion. I would like to And thank it on is behalf good of to all the see 8. you all during On behalf lockdown. of all the 8 groups, really, I would. एक मिनट ठहर जाओ जी, एक मिनट Nice ठहर। words. चुग साहब बोल रहे हैं तो बोल Thank रहे हैं। you very much. Kakkarji, thank you. No sir, oh it's all good. Thank you, Chug Sahab. ओके, तो हम नेक्स्ट वीक एक दूसरा कर लेंगे और बाकी किसी को दे देंगे। अब अभी सब लोग और three एक cheers थैंक for मेरे Chug। सब लोग जोर से क्लैप कर दीजिए एक प्लीज। मिनट, एक थैंक यू मुझे करना है अपने प्रेसिडेंट सुनील जी का और हमारे जो बड़े एक्टिव मेंबर हैं क्लब के शमी कपूर जी का, यस क्योंकि 60 भी सुनील साथ में ही जी है हमारे। वाज जब मैंने क्लब ज्वाइन किया, ज्यादा देर नहीं हुई मुझे क्लब यहाँ मुझे आए तो 16 साल हो गए, पर एक क्लब मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, क्लब 60 टॉर्नेट। और सुनील जी वाज द फर्स्ट मैन who gave me a chance to speak to the club members regarding these visas and these things. So that was my first meeting. उसके बाद तो फिर मुझे कई क्लब में, मैं मोस्टली वेंडम में जितने क्लब थे, वेंडम वेल्स में गुजराती क्लब से या पेनरोज में, अपने पीसी रॉयल्स कक्कड़ जी के क्लब में भी गया, सेवा इंटरनेशनल अपने पटेल जी और वो प्रेम जी के क्लब में भी गया, मेहता जी का भी भारतीय क्लब सीनियर्स है उनमें भी गए, और भी कई क्लब हैं, एक नेपाली क्लब है उन्होंने भी मुझे बुलाया, वहाँ भी मैं गया। तो आई एम थैंकफुल टू सुनील जी एंड शमी जी बोथ, दे ऑलवेज encourage me, एंड कक्कड़ जी का तो इनको तो मैं जब भी कहता हूँ मीटिंग अरेंज करो तो दे इज ऑलवेज नेवर से नो, ऑलवेज रेडी। तो थैंक यू टू ऑल, और मैं हाजिर हूँ, अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे फोन कभी भी कर सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन 8-10 दिन आते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया से मेरे को फोन आते हैं,
फेसबुक पे मेरे इसी चक्कर में बहुत फ्रेंड बन गए हैं। जगदीश जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। मैं आया था तो मेरे घर के ही लोग थे, 36 लोग फेसबुक पे। अब मेरे 1400-1500 लोग मेरे से जुड़ गए हैं, तो सबसे बात होती रहती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर, आपके पास जो नॉलेज है इसका पूरी ये सोसाइटी को फायदा मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा से कर रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सब लोग अभी जोरदार एक बार जोरदार तालियां से कर दो चुप साहब का। Thank you so much, Chuk Saab. Thank you very much. Thank you very much. थैंक्स अ लॉट बॉस सर जी। आपका एक सवाल था। हाँ जी। आपका एक सवाल था कक्कड़ साहब। हाँ जी। कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे लेना है। हाँ यस, कोविड का डिजिटल, यस ये पहले बता दो। तो ये मैं ये जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक तो आपके लिए ये है, इफ यू कांट गेट प्रूफ कोविड वैक्सीनेशन, इफ यू कांट गेट प्रूफ online, your vaccination provider can print your immunization history for you. एक तो ये है, जहाँ से आपने लगवाया है वो आपको दे सकता है, प्रिंट करके आपको दे सकता है। सेकंड है कि you can call the Australian Immunization Register Office. अगर उनको कहोगे तो वो भी आपको बाई पोस्ट भेज सकते हैं। और जो कैसे आपको ये मिल सकता है डिजिटल, इसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। एक तो आप लोगों का माई गॉव अकाउंट नहीं होगा, टेम्परेरी का या नहीं होता है किसी का भी। हम लोगों का तो है, क्योंकि वी आर लिंक विद सेंटर लिंक। तो नहीं, हमारा हो गया सर जी, माई गो में हो जाता है। अच्छा, ब्रिजिंग वाले का हो जाता है 80। ब्रिजिंग का माई गो जिसका नहीं है तो उसका तो उसके बाद माई गो होने के बाद एक और उसको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल हेल्थ केयर आइडेंटिफायर के लिए, IHI नंबर। यस, हाँ IHI, उसके लिए देन यू विल गेट इट। इसके लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप सबको भेज देना कैसे आपको माई गोल लेना है। वो कंप्लीट लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू गो टू दैट लिंक यू विल बी कनेक्टेड। ये दोनों IHI और माई गो बनाने के लिए मैं लिंक आपके PC उसमें डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा, और आप कर लीजिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कांटेक्ट। दैट्स अ ग्रेट इन्फो सर जी, क्योंकि ये तो सबके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट अभी जरूरी हाँ है। जी, अभी जरूरी है। हाँ काफी जरूरी है। और कुसुम जी आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं, थैंक यू भाई साहब, मेरा नहीं कोई। थैंक यू। ओके 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 मैडम। कॉन्टेक्ट नंबर जगदीश सर। हाँ जी, सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। हाँ नंबर आपको बाद में भेज देंगे। नंबर मिल जाएगा कक्कड़ साहब से। हाँ मेरे से आप ले सकते हो, ग्रुप में डाल सबका देंगे। नंबर। नंबर मैंने इस ग्रुप में डाल भी दिया जी, चैट बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स में नहीं तो नहीं आता है, तो मैं मेरे पास से कोई भी चाहिए किसी को भी तो व्हाट्सएप करके मेरे पास से ले लो आप, ठीक है, मैं दे दूंगा। थैंक यू राजेंद्र भाई, थैंक्स। वेलकम जी, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच रुक साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर अच्छी इन्फॉर्मेशन सभी को देने के लिए। बहुत ही यूजफुल इन्फो रही चुप साहब। गॉड ब्लेस यू सर। लवली इन्फॉर्मेशन। हमारी शुभकामना। थैंक यू सर। अभी सर Thank मैं you, आ रहा था, Shukriya, हमें Kukar साहब। Thank you so much. How you all? टर्न बाय टर्न एक एक करके सब लोग चुप से आपको बधाई दे दो, इसको भी टर्न बाय टर्न लेकिन बोलो। चुप साहब। हाँ जी सतिंदर जी। चुप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, एवरीवन आई थिंक एवरीवन अप्रिशिएटेड इट। एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस यस, एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से। ओके ओके नेक्स्ट के बाद हमें आपका इंद्रजीत जी। थैंक यू। ओके सर। हाँ जी, ओके मेल्टन कोई में हम नेक्स्ट आपकी अभी? वेट करेंगे। Thank you, Kukar ji. Thank you very much. It was a very nice session. यस रोनिका जी। थैंक Look, यू। Thank you. Next time welcome, sir ji. we'll have more questions. More people will join in.
Yes, definitely. थैंक यू चुप रूपाली भाई जी, साहब, थैंक यू कक्कड़ भाई शम्मी साहब, जी, थैंक यू चुप भाई रूपाली जी साहब। आप भी बोलिए, शम्मी जी। Sir, वेलकम जी। चुग साहब थैंक यू Okay. सो मच, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन Thank you, दिया sir. आपने, Thank you, रियली madam. सच में। मैं Yes. मुझे तो पता है, मैं तो पर्सनली फोन करके भी ले लेती हूँ आपसे। हाँ, yes. हम सच तो कभी भी हैट्स डिस्टर्ब ऑफ कर टू लेते यू, हैं। हैट्स ऑफ टू यू, Thank क्योंकि you. आप हमेशा हर एक के उसके लिए हेल्प के लिए खड़े हैं। थैंक शम्मी जी, यू सो मच। पिंकी जी, God शम्मी bless जी, you. पिंकी हाँ जी, जी। जिसको भी सुख बोलना। साहब बहुत बहुत थैंक आपका यू धन्यवाद। सर, मैं आपको आपने फोन करके सबको आपसे बहुत कुछ बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन लूंगा सर। इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, भूपल जी, आप It's क्या all कहते because of you, We Shammi get good ji. information. He is Yes, a man who encourages me also. Shammi Yes, ji. yes, he is a Yes. most active person, Shami He ji. is very थैंक यू वेरी active. मच। थैंक He यू जी, थैंक यू पिंकी जी, आप encourages. कुछ बोलना चाहेंगे? और बाकी और सबका कौन है? थैंक्स, कक्कड़ जी का भी थैंक्स, वेलकम जी। सबका अरे नहीं थैंक्स नहीं, जिन्होंने मेरा अरेंज नहीं, किया। ये तो चुप साहब कर